Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you are safe and healthy at home. We are back with our course discussion. बेटा हमने लास्ट लेक्चर में रिलेशनशिप्स की बात की थी and in today's lecture we will talk about the summary of previous lecture. Relationship types versus relationship instances, types of relationships, degree of relationship, cardinality of relationships, and cardinality constraints. So, relationship types versus relationship instance. Relationship type is a set of association among the entity types. Here is the imply entity type having some attributes. Imply ID is an identifier of the imply entity type. Identifier means it is your primary key. Attribute, why it is called composite? Because imply name may have some components. Imply first name, last name, middle name. And we know that composite attribute के जो components होते हैं that are enclosed within the parenthesis. And third one attribute is the date of birth. So these three attributes ये हमारे imply entity type के हैं. Course entity type have some other attributes. Course ID is an identifier, mean to say it is the primary key of the course entity type. Course title is another attribute, and topic is a multi-valued attribute because कोर्स में मल्टी टॉपिक्स पॉसिबल हैं, मोर देन वन टॉपिक हो सकते हैं. एंड आल्सो हम मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को इनक्लोज करते हैं कर्ली ब्रेसेस में. सो टॉपिक इज़ इनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रेसेस. टॉपिक इज़ आवर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट. There is a relationship between imply and course. Complete is a relationship type. Here, imply is an entity type, course is an entity type. There are some values, some occurrences of imply. Mean relationship instance mean occurrence, record. यानी आप कह लें कि entities कि जो अक्रेंसेस के दरमियान जो लिंक है दैट इज़ रिलेशनशिप इंस्टेंस. इम्प्लाई कि हमने कुछ यहाँ पे नेम्स लिए, अक्रेंसेस ली, रैकेट्स लिए, चैन, मेल्टन एंड सो ऑन सो फोर्थ. यहाँ पे कोर्सेज़ को हम शो कर रहे हैं. सम कोर्सेज़ कोर्स C++, जावा, कोबोल, विजुअल बेसिक, पर्ल, सीक्वल एट्सट्रा. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने इम्प्लाई को रिलेट कर रही हैं कोर्सेज़ के साथ. चैन इज़ रिलेटेड विद द C++ एंड आल्सो विद द जावा. मीन यहाँ पे एक पर्सन जो इम्प्लाई चैन है वो रिलेट कर रहा है टू अक्रेंसेस के साथ. सेम लाइक दैट यहाँ पे अगर हम C++ की बात करें दैट इज़ आल्सो रिलेटेड विद टू इम्प्लाइज मिस्टर चैन एंड मेल्टन. वो टू इम्प्लाइज भी हो सकती हैं, थ्री भी हो सकती हैं. मीन टू से हम जब एंटिटीज़ की अक्रेंसेस के दरमियान लिंक शो करते हैं उससे हम रिलेशनशिप इंस्टेंस का नाम देते हैं. हम ये भी जानते हैं कि रिलेशनशिप हैव देयर ओन एट्रीब्यूट्स. अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है रिलेशनशिप कैन हैव देयर ओन एट्रीब्यूट्स लाइक द एंटिटी टाइप्स. Before that, we learn about the imply entity type have some attributes, imply ID, imply name and date of birth. These are the attributes of the imply entity type. These are the attributes of the course entity type. In course ID, course title and topic. यानी वो attributes जो imply से related हैं उसको हमने imply entity box में replace कर दिया. And those attributes that are related with only course entity type that are enclosed within that rectangle box of the course. हम यहाँ पे ये देखते हैं कि ऐसे attributes
ना वो इम्प्लाइज टोटली इम्प्लाई पे डिपेंड करें, ना वो टोटली कोर्स पे डिपेंड करें, बल्कि वो इन दोनों के लिंक पे डिपेंड करें, दोनों की रिलेशनशिप पे डिपेंड करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को कि ये रिक्वायर्ड है कि एक एम्प्लाई ने कोर्सेज़ को कंप्लीट तो किया, ऑन विच डेट a particular employee complete a specific course, so date completed is required. इस सिनेरियो में हमें डेट completed required है, that also need to represent in your ER model and also in the implementation, कि एक किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय मिस्टर चैन ने C++ को कब कंप्लीट किया, ऑन विच डेट that person completed a specific course. So हमने डेट completed एट्रीब्यूट को भी रिप्रेजेंट करना है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है, आइदर डेट completed को हम एम्प्लॉय एंटिटी टाइप में रिप्रेजेंट करें, इस बॉक्स में लिख दिया जाए, आइदर डेट completed एट्रीब्यूट को आप कोर्स एंटिटी टाइप में रिप्रेजेंट करें और सम एल्स। मैंने पहले भी कहा कि एम्प्लॉय में वो एट्रीब्यूट्स आपने प्लेस करनी होती हैं दैट आर ओनली डिपेंड्स अपॉन द एम्प्लॉय एंटिटी टाइप। इसी तरह कोर्स में वो एट्रीब्यूट्स प्लेस करते हैं विच आर ओनली डिपेंड अपॉन द कोर्स एंटिटी टाइप। सो डेट कंप्लीटेड एम्प्लॉय पे भी डिपेंड कर रहा है, कोर्स पे भी डिपेंड कर रहा है। सो डेट कंप्लीटेड को आप क्या करेंगे, इसके रिलेशनशिप पे शो करेंगे। तो हमने कंप्लीट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉय एंड द कोर्स, और हमने यहाँ पे क्या किया, डेट कंप्लीटेड को डॉटेड लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया। सो डेट कंप्लीटेड इज एन एट्रीब्यूट ऑफ द रिलेशनशिप टाइप कंप्लीट्स। डेट कंप्लीटेड डिपेंड अपॉन बोथ, इन अदर वर्ड्स जो डेट कंप्लीटेड है डिपेंड्स अपॉन बोथ द एम्प्लॉय एंटिटी टाइप एज वेल एज ऑन द कोर्स एंटिटी टाइप। सो डेट कंप्लीटेड इज एन एट्रीब्यूट ऑफ द कंप्लीट। सिर्फ ये नहीं होता कि एम्प्लॉय के एट्रीब्यूट्स होते हैं, बल्कि कोर्सेज़ के भी, बल्कि एंटिटी टाइप्स के भी एट्रीब्यूट पॉसिबल हैं। यहाँ पे हमने इस चीज़ को कंक्लूड किया। नेक्स्ट हम देखते हैं, टू एंटिटीज़ कैन हैव मोर देन वन टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन देम। यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि कोई टू एंटिटी टाइप्स हैं, उनका ये नहीं होगा कि ओनली वन वे से वो रिलेट करेंगे। दे हैव मोर देन वन टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स, उसमें एक से ज़्यादा रिलेशनशिप पॉसिबल हैं। जैसे अगर हम इस एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे वन एंटिटी टाइप इज़ द एम्प्लॉय, सेकंड एंटिटी टाइप इज़ द डिपार्टमेंट, देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट, नेम इज़ वर्क्स, वर्क्स इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट। There is another relationship, second relationship is the manage between the employee and the department. Mean employee और department two different entity types हैं, इसमें multiple relationships हैं। One relationship name is work, other relationship is manage. Mean employee works only for one department, employee works in only one department, and department has many workers, one or many workers। यानी एक एम्प्लॉय का एक ही डिपार्टमेंट होगा और एक डिपार्टमेंट में एक या मैनी एम्प्लॉइज़ होंगे, एटलीस्ट वन एम्प्लॉय हों। तो ये वर्क्स का रिलेशनशिप था। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि एम्प्लॉय मैनेज ज़ीरो डिपार्टमेंट और ओनली वन डिपार्टमेंट। इन अदर वर्ड्स employee manage at most one department and department is managed by only one employee। एक डिपार्टमेंट को सिर्फ ओनली वन पर्सन ही मैनेज करेगा। जैसे हम कहते हैं कि एक डिपार्टमेंट में एक ही एचओडी होगा, अगर मोर देन वन एचओडी होंगे तो डेफिनेटली कन्फ्लिक्ट होगा ना। तो यहाँ पे हम ये जो प्रिंसिपल ये फॉलो हम कर रहे हैं कि आर डिपार्टमेंट इज़ मैनेज बाय ओनली वन एम्प्लॉय, ओनली वन, एग्जैक्टली वन, वन एंड ओनली वन। ना वन से कम होंगे ना वन से ज़्यादा एम्प्लॉइज़ होंगे जो डिपार्टमेंट को मैनेज करेंगे, यानी एचओडीज़ एक ही एचओडी होगा जो डिपार्टमेंट को मैनेज करेगा।
सो ये रिलेशन, तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि टू एंटी टाइप्स के दरमियान रिलेशनशिप एक नहीं है, यहाँ पे टू डिफरेंट रिलेशनशिप्स हैं. वन इज़ द वर्क रिलेशनशिप, अदर इज़ द मैनेजर रिलेशनशिप. इसी तरह हम देखें कि यहाँ पे हमने कंसिडर किया एम्प्लॉय. एन एम्प्लॉय सुपरवाइज ज़ीरो और मैनी एम्प्लॉय. एन एम्प्लॉय इज़ सुपरवाइज बाय ओनली वन एम्प्लॉय. तो यहाँ इस रिलेशनशिप जो सुपरवाइज रिलेशनशिप है, इसमें ओनली वन एंटी टाइप इन्वॉल्व हो रही है, दैट इज़ एम्प्लॉय, और वो उसकी एक अक्रेंस अदर अक्रेंस से रिलेट कर रही है. टाइप दोनों की सेम है. एक एम्प्लॉय हम अदर एम्प्लॉइज़ को सुपरवाइज़ कर रहा है, और ये अदर एम्प्लॉइज़ किसी एक ही एम्प्लॉय से सुपरवाइज़ हो रहे हैं. तो ये एक हमने कहा कि सुपरवाइज इज़ द रिलेशनशिप. ठीक है, तो जिसमें एम्प्लॉय सुपरवाइज ज़ीरो और मैनी एम्प्लॉय, बट एम्प्लॉय इज़ सुपरवाइज बाय ओनली वन एम्प्लॉय. सुपरवाइज रिलेशनशिप आ रहा है. हमारी टॉपिक कंटिन्यू ये था कि एक रिलेशनशिप टू एंटी टाइप्स के दरमियान एक से ज़्यादा रिलेशनशिप पॉसिबल हैं, जैसे यहाँ पे वर्क्स था एंड आल्सो मैनेज का था. इसी तरह एक अदर एग्जांपल आप थिंक ओवर करें. आप फैकल्टी और स्टूडेंट्स की हम इसको कंसिडर कर लेते हैं अपनी यूनिवर्सिटी सिनेरियो में. तो हमारा सिनेरियो में क्या है कि फैकल्टी मेंबर टीचेस द स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स को टीच कर रहे हैं. ठीक है, वन वे रिलेशनशिप क्या होगा, टीचिंग का होगा कि टीच कि वो स्टूडेंट्स को टीच कर रहे हैं. इसी तरह जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो स्टूडेंट को एडवाइस भी कर रहे हैं एज अ बैच एडवाइज़र. सो अगर हम स्टूडेंट और फैकल्टी मेंबर, ये हमारे पास टू डिफरेंट एंटी टाइप्स हैं, ये दो तरह से रिलेट कर रही हैं. वन वे इज़ द टीचिंग, अदर वे इज़ द एडवाइसिंग. यानी वन रिलेशनशिप क्या होगा, टीच का होगा, और सेकंड रिलेशनशिप क्या होगा, एडवाइस का होगा, कि फैकल्टी मेंबर स्टूडेंट्स को टीच भी कर रहे हैं, वन, एंड सेकंड वन फैकल्टी मेंबर स्टूडेंट्स को एडवाइस भी कर रहे हैं एज द बैच एडवाइज़र. सो हमने कंक्लूड किया एंटिटीज़ कैन बी रिलेटेड टू वन अनदर इन मोर देन वन वे. Now, relationships types of relationships can be established on the basis of participant entity types. Mean to say, जो रिलेशनशिप की टाइप्स होती हैं वो डिपेंड करती हैं कि उस रिलेशनशिप में कितने एंटी टाइप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसमें कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, एंटी टाइप्स के कितने पार्टिसिपेंट्स हैं. इन अदर वर्ड्स, जैसे हम कहते हैं कि अगर किसी रिलेशनशिप में एक ही पार्टिसिपेंट होगा, ओनली वन एंटी टाइप इन्वॉल्व होगी, दैट इज़ नोन एज यूनिरी रिलेशनशिप. सो फर्स्ट टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज़ द यूनिरी रिलेशनशिप. सेकेंड वन इज़ द बाइनरी रिलेशनशिप, and third one is the ternary relationship. Generally we can say that n array relationship, अगर more than 3 एंटी टाइप्स इन्वॉल्व हो रही हैं किसी भी रिलेशनशिप में, तो वो हमारा n array relationship होगा. if only one entity type involved in a relationship, that is your unity relationship. Unity relationship is also known as recursive relationship. यानी किसी एक एंटी टाइप का एक रैकेट उसी एंटी टाइप के अदर रैकेट से रिलेट करे, उससे हम कहते हैं यूनी रिलेशनशिप. मीन टू से यूनी रिलेशनशिप इज़ आल्सो नोन एज अ रिकर्सिव रिलेशनशिप. मीन अ एंटी रिलेट विद इटसेल्फ ऑफ द सेम टाइप इज़ नोन एज अ रिकर्सिव रिलेशनशिप. फॉर एग्जाम्पल, students relate with the students, being class fellow, being roommates. देखिए कि मिस्टर अली एक स्टूडेंट है, वो अदर स्टूडेंट अपने रूममेट से रिलेट कर रहा है, तो वो भी स्टूडेंट है. दोनों की जो टाइप है वो स्टूडेंट है.
उसमें एक ही एंटी टाइप इन्वॉल्व हो रही है। मैं ये ही नहीं कह रहा कि स्टूडेंट का लिंक डिपार्टमेंट के साथ शो कर रहा हूँ कि स्टूडेंट डिपार्टमेंट से, तो ये तो टू डिफरेंट टाइप्स की एंटिटी इन्वॉल्व हो जाएंगी। मैं जस्ट ये कह रहा हूँ कि किसी एक एंटी टाइप की जो एक अक्रेंस है वो उसी एंटी टाइप की अदर अक्रेंसेस रिलेट करे, दैट इज़ नोन एज अ यूनिरी रिलेशनशिप, आल्सो नोन एज अ रिकर्सिव रिलेशनशिप। नंबर ऑफ़ एग्जांपल्स हैं, जैसे अभी हमने एग्जांपल देखी यहाँ पे एम्प्लॉय की, ये जो रिलेशनशिप है सुपरवाइज का, दैट इज़ आल्सो योर यूनिरी रिलेशनशिप। वाई इट इज़ कॉल्ड यूनिरी? बिकॉज सुपरवाइज रिलेशनशिप में एक ही एंटी टाइप इन्वॉल्व हो रही है, दैट इज़ एम्प्लॉय। एक एम्प्लॉय मैनी एम्प्लॉयज़ को सुपरवाइज कर रहा है और जो एम्प्लॉयज़ हैं वो किसी एक ही एम्प्लॉय से सुपरवाइज हो रहे हैं। सो इस रिलेशनशिप में एक ही एंटी टाइप इन्वॉल्व हो रही है एम्प्लॉय। इस सुपरवाइज में डिपार्टमेंट इन्वॉल्व नहीं हो रहा, इसमें ओनली एम्प्लॉय इन्वॉल्व हो रहा है। यानी इस एम्प्लॉय एंटिटी की एक जो इंस्टेंस है वो अपनी अदर इंस्टेंस से रिलेट कर रही है एम्प्लॉय ही की। सो इसे हम नाम देते हैं यूनिरी रिलेशनशिप, आल्सो नोन एज रिकर्सिव रिलेशनशिप। Second one is binary. Binary mean two. A relationship in which only two entity types involved participates. इसमें two entity types part ऐसा relationship जिसमें two entity types participates करती हैं, relate करती हैं, involved होती हैं, उससे हम binary relationship का नाम देंगे। For example, डिपार्टमेंट का स्टूडेंट के साथ लिंक, स्टूडेंट्स रिलेट विद द डिपार्टमेंट्स। वन एंटी टाइप इज़ द स्टूडेंट, अदर एंटी टाइप इज़ द डिपार्टमेंट। सो स्टूडेंट्स आर रजिस्टर्ड इन द डिपार्टमेंट्स। ठीक हो गया। ये स्टूडेंट का कोर्स से हम बात कर लें, स्टूडेंट आर इनरोल्ड इन द कोर्सेज, तो वन एंटी टाइप इज़ द स्टूडेंट एंड सेकेंड वन इज़ द कोर्स। दिस इज़ आल्सो योर बाइनरी रिलेशनशिप। नंबर ऑफ़ रिलेशनशिप्स हैं। अगर हम इसी तरह हम बात करें किसी हॉस्पिटल सेक्टर्स की, तो हम कहते हैं कि डॉक्टर्स मीन फिजिशियंस रिलेट करते हैं पेशेंट्स के साथ, उसको एग्जामिन कर रहे हैं। तो ये जो रिलेशनशिप है इसमें भी टू एंटी टाइप्स इन्वॉल्व हो रही है, वन इज़ द पेशेंट, अदर इज़ द फिजिशियन। इसी तरह हम लास्ट एग्जांपल हमने देखी कि एम्प्लॉय, ये वाली एग्जांपल देखें कि एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट के साथ जो वर्क्स रिलेशनशिप है दैट इज़ आल्सो योर बाइनरी रिलेशनशिप, क्योंकि इसमें भी टू एंटी टाइप्स इन्वॉल्व हो रही है, वन इज़ द एम्प्लॉय, अदर इज़ द डिपार्टमेंट। नंबर ऑफ़ एग्जांपल्स हैं, आप थिंक ओवर कीजिएगा इसकी। थर्ड वन इज़ योर टर्नरी रिलेशनशिप, अ रिलेशनशिप इन विच थ्री एंटी टाइप्स आर इन्वॉल्व्ड, पार्टिसिपेंट रिलेटेड इज़ नोन एज अ टर्नरी रिलेशनशिप। फॉर एग्जांपल, यानी फैकल्टी कोर्सेज़ को टीच कर रहे हैं और उन कोर्सेज़ में स्टूडेंट रजिस्टर हैं। सो इन तीनों एंटिटी टाइप्स का आपस में जो रिलेशनशिप होगा वो टर्नरी रिलेशनशिप है, क्योंकि इसमें थ्री टाइप्स की एंटिटी टाइप्स इन्वॉल्व हैं। वन इज़ द फैकल्टी मेंबर, सेकंड वन इज़ द कोर्स एंड थर्ड वन इज़ द स्टूडेंट। सो दिस इज़ नोन एज टर्नरी रिलेशनशिप। इसी तरह जनरली अगर हम बात कर लें एन अरे रिलेशनशिप की, वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। एन अरे रिलेशनशिप मीन मोर देन, अगर थ्री एंटी टाइप्स किसी भी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होती हैं तो हमारा एन अरे रिलेशनशिप होगा। अगर फोर इन्वॉल्व हो रही हैं तो फोर अरे रिलेशनशिप हो जाएगा। सेम लाइक दैट अगर उसमें फाइव एंटी टाइप्स इन्वॉल्व हो रही हैं दैट इज़ योर फाइव अरे रिलेशनशिप। डिग्री ऑफ relationships mean number of entity types that participate in a relationship। किसी भी रिलेशनशिप में जितनी एंटी टाइप्स पार्टिसिपेट करते हैं वो उस रिलेशनशिप की डिग्री कहलाती है। जैसे हम कहते हैं कि यूनि रिलेशनशिप है, तो यूनि रिलेशनशिप की डिग्री क्या होगी? थिंक ओवर। वन। वाई? बिकॉज इन यूनि रिलेशनशिप ओनली वन एंटी टाइप participate and the occurrence of that anti-type relate with other occurrence of the same type,
सो उसमें एक ही एंटिटी टाइप इन्वॉल्व हो रहा है तो उसकी डिग्री 1 होगी। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल देखी, आप बैक साइड पे आए, यहाँ पे ये एम्प्लाई सुपरवाइज एक यूनिक रिलेशनशिप था, इसको हमने कंक्लूड किया। अब इसमें कितने एंटिटी टाइप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं? ओनली 1। सो सुपरवाइज अगर रिलेशनशिप की हम डिग्री फाइंड आउट करना चाहें कि व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ सुपरवाइज रिलेशनशिप, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? 1, क्योंकि उसमें ओनली 1 एंटिटी टाइप दैट इज़ द एम्प्लाई वो इन्वॉल्व है। अगर हम इसी तरह अगर हम वर्क्स की बात करें, वर्क्स रिलेशनशिप है दैट इज़ योर बाइनरी रिलेशनशिप, इसमें 2 एंटिटी टाइप्स इन्वॉल्व हो रही हैं, एम्प्लाई एंड डिपार्टमेंट। सो वर्क्स रिलेशनशिप की डिग्री क्या होगी? 2, यानी बाइनरी रिलेशनशिप की हमारी डिग्री क्या होगी? 2। एंड टर्नरी रिलेशनशिप की डिग्री सेम लाइक दैट 3 होगी। यहाँ पे हमने यूनिक रिलेशनशिप को शो किया, 1 एंटिटी रिलेटेड टू अनदर ऑफ द सेम एंटिटी टाइप इज नोन एज अ यूनिक रिलेशनशिप। बाइनरी रिलेशनशिप, एंटिटीज ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स रिलेटेड टू ईच अदर, यानी 2 डिफरेंट टाइप्स की एंटिटीज आपस में इन्वॉल्व हो रही हैं। 1 इज़ द डिपार्टमेंट, अदर इज़ द स्टूडेंट। तो दिस इज योर टर्नरी रिलेशनशिप डायग्राम। सपोज दिस वन इज़ द फैकल्टी entity type, this is your course entity type, and this one is your students। इसमें 3 entity types इन्वॉल्व होंगी, तो ये हमारी ternary relationship होगा। cardinality of relationships, cardinality of relationship mean number of instances of one entity that can or must be associated with each instance of another entity type। कार्डिनलिटी मीन हम कहते हैं कि किसी एक्स एंटिटी की कितनी इंस्टेंसेस वाई के साथ रिलेट कर रही हैं, एंड सेम लाइक दैट वाई की एक्स के साथ रिलेट कर रही। तो ये यहाँ पे हम नॉर्मली उसको मैंने 3 फॉर्म्स में क्लासीफाई कर दिया। 1-to-1 कार्डिनलिटी, 1-to-many कार्डिनलिटी, एंड many-to-many। जब आप डिफरेंट बुक्स कंसल्ट करेंगे या नेट को एक्सप्लोर करेंगे, आप देखेंगे कि बास ने इसको 1-to-many के साथ 4 कैटेगरी में इन्होंने डिवाइड किया है, क्लासीफाई कर दिया है। 1-to-many एंड आल्सो many-to-1। तो मैंने यहाँ पे इसको जनरली मैंने जस्ट 1-to-many में शो कर दिया बिकॉज द मीनिंग इज़ सेम। अगर हम x to y की तरफ रीड करेंगे तो वो 1-to-many हो जाएगा, अगर सेम को हम y to x रीड करेंगे तो many-to-1 हो जाएगा। सो 1-to-many एंड many-to-1 आर द सेम थिंग। जस्ट इसकी आपने अप्रोच को देखना है कि आप किसकी तरफ जा रहे हैं। अगर फ्रॉम x to y है दैट इज़ 1-to-many, अगर इसी को अगर हम y to x कर लें दिस इज़ many-to-1। सो यहाँ पे मैंने इसको 3 फॉर्म्स में क्लासीफाई कर दिया। 1-to-1 कार्डिनलिटी मीन सपोज x इज़ एन एंटिटी टाइप, y इज़ अनदर एंटिटी टाइप। x की सिंगल इंस्टेंस y की एग्जैक्टली 1 इंस्टेंस से रिलेट कर रही है, सिंगल इंस्टेंस से रिलेट कर रही है, एंड सेम लाइक दैट y की सिंगल इंस्टेंस x की सिंगल इंस्टेंस से रिलेट कर रही है, तो दैट कार्डिनलिटी इज़ नोन एज 1-to-1 कार्डिनलिटी। अगर हम 1-to-many की बात करें, मीन x की सिंगल इंस्टेंस y की मैनी के साथ रिलेट करे, y की मैनी इंस्टेंसेस के साथ रिलेट करे, एंड y की सिंगल इंस्टेंस x की ओनली 1 इंस्टेंस के साथ रिलेट करे, तो उसको हम नाम देंगे 1-to-many। many-to-many मीन x की सिंगल इंस्टेंस y की मैनी इंस्टेंस के साथ रिलेट कर रही है, और y की सिंगल इंस्टेंस x की भी मैनी के साथ रिलेट करे, तो इसे हम many-to-many का नाम देते हैं। जैसे यहाँ पे देखें कि पर्सन इज़ एन एंटिटी टाइप, इज़ मैरिड टू, इज़ अ रिलेशनशिप। अब इस मैरिड टू रिलेशनशिप को हम थोड़ा सा इस देखें, क्या ये रिलेशनशिप हमारा बाइनरी है? आइदर दिस रिलेशनशिप इज़ टर्नरी रिलेशनशिप, यूनिक रिलेशनशिप। तो आंसर इस मैरिड टू रिलेशनशिप इज़ अ रिकर्सिव रिलेशनशिप, इज़ अ यूनिक रिलेशनशिप। ये हमारा यूनिक रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप तो यूनिक है, क्यों वाइट इज़ कॉल्ड यूनिक? क्योंकि इसमें एक ही एंटिटी टाइप इन्वॉल्व हो रही है, पर्सन, एंड 1 पर्सन इज़ मैरिड विद अदर पर्सन। वो भी पर्सन है, एक पर्सन से मैरिड होगा,
दोनों की टाइप पर्सन है तो एक ही एंटिटी टाइप इन्वॉल्व हुई इस रिलेशनशिप में. सो इससे इस मैरिड टू जो रिलेशनशिप हुआ यूनिटी रिलेशनशिप हुआ. यूनिटी तो है. अब इसकी कार्डिनलिटी हम देखें कि आइदर इसकी कार्डिनलिटी 1 to 1 है, 1 to many है, और मैनी टू मैनी. रूल क्या था? सपोज ये रूल हम एज्यूम करते हैं, वन पर्सन इज़ मैरिड विद वन पर्सन, सो 1 to 1 कार्डिनलिटी वो हमने यहाँ पे शो की. 1 to 1 कार्डिनलिटी, ये 1 to 1 कार्डिनलिटी शो की जा रही. इसी तरह सेकंड एग्जांपल देखें, इम्प्लाई, इसके दरमियान जो रिलेशनशिप है इम्प्लाइज़ का आपस में जो रिलेशनशिप है वो मैनेज का है. मैनेज रिलेशनशिप ये भी यूनिटी है क्योंकि इसमें भी एक ही एंटिटी टाइप इन्वॉल्व हो रही है, दैट इज़ द इम्प्लाई. कार्डिनलिटी देखते हैं, है तो यूनिटी पर इसकी कार्डिनलिटी क्या है? रूल ये था ऑर्गेनाइजेशन का, वन इम्प्लाई मैनेज मैनी इम्प्लाइज. सो मैनेज जो रिलेशनशिप होगा इसकी जो कार्डिनलिटी होगी वो 1 to many होगा. वन इम्प्लाई मैनेज मैनी इम्प्लाई, एन इम्प्लाई इज़ मैनेज बाई ओनली वन इम्प्लाई. सो कार्डिनलिटी ऑफ मैनेज रिलेशनशिप इज़ 1 to many. हम सेकंड की तरफ टर्न करते हैं कि इम्प्लाई. इम्प्लाई इज़ एन एंटिटी टाइप, पार्किंग स्पेस इज़ another entity type, is assigned is a relationship between the employee and the parking space. तो जो is assigned relationship, that is your binary relationship, because is assigned relationship में two entity types participate कर रही हैं. One is the employee, other is the parking space. So this is your binary relationship. What is its cardinality? प्रिंसिपल क्या है? जो भी प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन का होगा उसको हमने यहाँ पे ले डाउन करना है. सपोज ये प्रिंसिपल है, एम्प्लॉय इज़ असाइंड ओनली वन पार्किंग स्पेस एंड वन पार्किंग स्पेस इज़ असाइंड फॉर ओनली वन एम्प्लॉय. सो लिंक कार्डिनलिटी इज़ 1 to 1 कार्डिनलिटी. एक एम्प्लॉय के कोरस्पॉन्ड ओनली वन स्पेस होगी, पार्किंग स्पेस होगी एलोकेट की गई है, और एक पार्किंग स्पेस हमने असाइन किया ओनली वन एम्प्लॉई को, तो 1 to 1 कार्डिनलिटी. इसी तरह हम देखते हैं कंटेन्स, ये भी बाइनरी रिलेशनशिप है क्योंकि इसमें भी टू एंटिटी टाइप्स इन्वॉल्व हो रही हैं. वन इज़ द प्रोडक्ट लाइन, अदर इज़ द प्रोडक्ट. कार्डिनलिटी क्या है कि वन प्रोडक्ट लाइन कंटेन्स मैनी प्रोडक्ट्स, सो 1 to many कार्डिनलिटी. एक प्रोडक्ट लाइन के कोरस्पॉन्ड मैनी प्रोडक्ट्स होंगी और एक प्रोडक्ट के कोरस्पॉन्ड एक ही लाइन होगी, एक ही कैटेगरी होगी. सो दिस इज़ 1 to many कार्डिनलिटी. इसी को अगर हम प्रोडक्ट लाइन टू प्रोडक्ट रीड करेंगे तो 1 to many होगा. बट अगर आप प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट लाइन रीड करते हैं, दिस रिलेशनशिप इज़ मैनी टू वन. इसको रिवर्स कर दें, मैनी टू वन. नाउ थर्ड वन एग्जांपल हम देखते हैं, student and course. These are two entity types, two different entity types. One is the student and other one is the course. Registers for is the relationship between the student and the course. So this binary relationship की हमने अगर हम इसकी कार्डिनलिटी देखना चाहते हैं तो रूल क्या था? यहाँ पे कोई सपोज ऑर्गेनाइजेशन का ये रूल है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड है, a student is registered for many courses and course have many students. So link mean to say cardinality between student to course is many to many. Course to student is also many to many. There are a number of examples you can apply, you can think of for the binary relationships. So this is ternary relationship. Supplies is a relationship that is ternary relationship. Vendor X, suppose vendor X है, वो किसी वेयर हाउस Y को कोई पार्ट सी सप्लाई करता है. जो सप्लाई कर रहा है उसका शिपिंग मोड क्या है? वो शिपिंग मोड मीन थ्रू एयर सप्लाई कर रहे हैं और थ्रू यूनिट कॉस्ट. इस रिलेशनशिप सप्लाईज रिलेशनशिप में 3 एंटिटी टाइप्स इन्वॉल्व हो रही है, इसलिए इसको हमने टर्नरी रिलेशनशिप का नाम दिया. वन एंटिटी टाइप इज़ द वेंडर, अदर एंटिटी टाइप इज़ द पार्ट एंड थर्ड वन एंटिटी टाइप इज़ द वेयर हाउस. तो ये दीज आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ द रिलेशनशिप सप्लाईज. हमने अभी बात की थी कि रिलेशनशिप मे हैव देयर ओन एट्रीब्यूट्स लाइक द एंटिटी टाइप्स.
जैसे वेंडर्स के अपने एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, वेंडर आईडी होगा, वेंडर नेम होगा, एड्रेस होगा, एट्सेट्रा। वेयर हाउस के एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, वेयर हाउस का कोई नंबर होगा, नेम होगा, कोई लोकेशन होगी, एड्रेस होगा, एट्सेट्रा। सेम लाइक दैट ये सप्लाई जो रिलेशनशिप टाइप है बिटवीन थ्री एंटिटी टाइप्स के दरमियान, इनके भी अपने एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। तो सपोज़ हमने एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई सपोज़ वेंडर एक्स है, वो वेयर हाउस वाई को कोई पार्ट सी सप्लाई करता है विद अ शिपिंग मोड ऑफ नेक्स्ट डे एयर एंड अ यूनिट कॉस्ट ऑफ $5। यानी उसने वेयर हाउस एक्स ने वेंडर एक्स ने वेयर हाउस वाई को कोई पार्ट सी सप्लाई किए कि उसकी शिपिंग मोड क्या है, कब वो शिफ्ट डिलीवर होगा, नेक्स्ट डे होगा, थ्रू एयर होगा, थ्रू ट्रेन होगा, एट्सेट्रा, थ्रू रोड एंड आल्सो उसकी यूनिट कॉस्ट क्या है। तो ये दो एट्रीब्यूट्स हैं, बोथ टू एट्रीब्यूट्स डिपेंड अपॉन ऑल थ्री एंटिटी टाइप्स। ये किसी वेंडर्स के एट्रीब्यूट्स नहीं हैं, किसी वेयर हाउस के एट्रीब्यूट्स नहीं हैं, किसी पार्ट के एट्रीब्यूट्स नहीं हैं, बल्कि ये सप्लाईज के एट्रीब्यूट्स हैं। मीन टू से ये वैसे एट्रीब्यूट्स हैं जो कलेक्टिवली डिपेंड कर रहे हैं इन तीनों एंटिटी टाइप्स पे। तो यहाँ पे भी हमने अगेन कंक्लूड किया इस एग्जांपल में भी, ए रिलेशनशिप कैन हैव देयर ओन एट्रीब्यूट्स। अब यहाँ पे कार्डिनैलिटी कॉन्स्टेंट्स की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि मिनिमम कार्डिनैलिटी एंड मैक्सिमम कार्डिनैलिटी। इफ़ द मिनिमम कार्डिनैलिटी इज़ ज़ीरो, if 0 then optional mean null label, that column may be null, your null column। आप उसको इम्प्लीमेंटेशन में एज अ नल कॉलम डिक्लेयर करेंगे, मीन उसकी वैल्यू रिक्वायर्ड नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड है अगर मिनिमम कार्डिनैलिटी हमारी 0 हो। बट इफ़ द मिनिमम कार्डिनैलिटी इज़ 1 or more then that column is a mandatory column, then mandatory होगा, mean must be required, you have to enter some value in that specific column। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि if minimum cardinality is 1 or more, that column is your not null column। तो इम्प्लीमेंटेशन में जब आप सीक्वल में, माई सीक्वल में, एसक्यूएल सर्वर में या ओरेकल वगैरह में, जो भी हमारे जितने भी DBMSs हैं, जब आप वहाँ पे क्रिएट करते हैं टेबल्स को, स्ट्रक्चर्स को क्रिएट करते हैं, तो उसको डिफरेंट कॉलम्स होती हैं, तो हमने क्या करना होगा, फिर उसको एज नॉट नल कॉलम डिक्लेयर करना होगा। यू हैव टू डिक्लेयर दैट कॉलम एज अ नॉट नल कॉलम, मैंडेटरी कॉलम, मस्ट बी रिक्वायर्ड, नॉट नलेबल। मैक्सिमम कार्डिनैलिटी मीन मैक्सिमम नंबर, आइदर 2 है, 3 है, 5 है, कोई भी मैक्सिमम नंबर लगा दें जो भी रिक्वायर्ड होगा, तो मैक्सिमम कार्डिनैलिटी होगी। Here are some examples of cardinality constraints। ये हमारी कुछ सिंबल्स हैं जो हमने यूज़ किए। These are your क्रॉस फुट सिंबल्स, यानी क्रॉस की फुट की फॉर्म की तरह के हैं, इसलिए हम क्रॉस फुट नोटेशंस का सिंबल्स भी कहते हैं, क्रॉस फुट नोटेशंस हैं। तो 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं। मैंडेटरी 1 मीन टू से एग्जैक्टली 1 एंड ओनली 1। Optional 1 mean to say at most 1, maximum 1, may be 0। यानी ऑप्शनल डिक्लेयर करेंगे, मीन इसकी मिनिमम जो कार्डिनैलिटी है जो अभी हमने डिस्कस की 0। अगर मिनिमम कार्डिनैलिटी 0 हो तो डेफिनेटली उसको आप नल कॉलम डिक्लेयर करते हैं, दिस इज योर नल कॉलम। इम्प्लीमेंटेशन की जब हम बात करेंगे, जो वर्टिकल बार है दैट रिप्रेजेंट्स द मैंडेटरी, जो सर्कल साइन है दैट रिप्रेजेंट्स द ऑप्शनल। सो मैंडेटरी मैनी, दिस इज योर मैंडेटरी मैनी, एट लीस्ट वन के मीनिंग में आएगा, 1 or more, 1 or many। ऑप्शनल मैनी मीन 0, 1, 2 or many। ऑप्शनल 1, ऑप्शनल मैनी, इसमें भी यानी नल रिक्वायर्ड है, मैंडेटरी नहीं है, नल की बात हो रही है। दैट कॉलम मस्ट नल कॉलम, इस इम्प्लीमेंटेशन में इसको नल कॉलम डिक्लेयर करें। ये कुछ हमने किसी ऑर्गेनाइजेशन का सिनेरियो लिया, उस सिनेरियोस को हम अप्लाई करते हैं
अपनी ERDs बनाते हैं सिनेरियोज़ की, इसका कंसेप्चुअल मॉडल प्लान कर रहे हैं. A patient must have recorded at least one history and can have many. But a patient history is recorded for one and only one patient. First of all, you have to identify the entity types in this paragraph, in this scenario. One entity type is the patient, and second entity type is the patient history. अब पेशेंट का पेशेंट हिस्ट्री के साथ एक लिंक है, उसको हमने शो करना है, उसकी ईयर डायग्राम बनानी है. अब कार्डिनलिटी क्या है? एंटिटी टाइप्स तो हमने आइडेंटिफाई कर ली, सो इसकी कार्डिनलिटी हम आइडेंटिफाई करते हैं. अब पेशेंट के कोरस्पॉन्ड एट लीस्ट वन हिस्ट्री है एंड कैन हैव मैनी. एट लीस्ट वन हिस्ट्री मीन वन एंड मैनी. और हिस्ट्री के कोरस्पॉन्ड पेशेंट क्या होगा? एग्जैक्टली वन, वन एंड ओनली वन, मैंडेटरी वन. तो हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, इसको हम ईयर डायग्राम हमने बनाई हुई है. दिस इज़ योर पेशेंट एंटिटी टाइप. हम रेक्टेंगल बॉक्स में पेशेंट को अपर केस लेटर में लिखा, ऑल लेटर्स आर इन अपर केस लेटर्स ऑफ पेशेंट एंटिटी टाइप. इसी तरह जो सेकंड एंटिटी टाइप थी वो पेशेंट हिस्ट्री थी, उसको भी हमने इनक्लोज किया पेशेंट हिस्ट्री को इन द रेक्टेंगल बॉक्स. उनके दरमियान कार्डिनलिटी हमने शो करनी है कि रिलेशनशिप हमने कहा कि हैज़ रिकॉर्डेड का. आप पेशेंट, जब पेशेंट से मैं रूल रीड करूँगा तो जो नोटेशंस होंगी वो हिस्ट्री साइड पे लगाऊंगा, और जब हिस्ट्री से रीड किया जाएगा तो जो सिंबल्स होंगे वो अपने पेशेंट साइड पे लगाने. रूल क्या था? आ पेशेंट मस्ट हैव recorded at least one history and can have many. One and many, at least one mean one and many. तो यहाँ पे हमने मैंडेटरी सिंबल लगा दिया एट लीस्ट वन एंड मैनी, कि मिनिमम वन कार्डिनलिटी है, मैक्सिमम मैनी हो सकती हैं. मैंडेटरी सिंबल लगा दिया कि इसको आप इम्प्लीमेंटेशन में ऐसा नॉट नल कॉलम डिक्लेयर करें, क्योंकि मैंडेटरी है, मस्ट बी. एंड पेशेंट हिस्ट्री is recorded for one and only one patient, exactly one patient, one and only one. एक हिस्ट्री के कोरस्पॉन्ड एक पेशेंट होगा, ना एक से कम और ना एक से ज़्यादा, एग्जैक्टली वन, वन एंड ओनली वन. तो यहाँ पे भी हमने मैंडेटरी सिंबल यूज़ किया, तो ये भी मैंडेट, बोथ साइड्स आर मैंडेटरी. दोनों की कार्डिनल जो मिनिमम कार्डिनलिटी है तो यहाँ पे हमने शो की. यहाँ पे मिनिमम कार्डिनलिटी इज़ वन पेशेंट साइड पे, और हिस्ट्री साइड पे मिनिमम कार्डिनलिटी इज़ आल्सो वन. द रिलेशनशिप बिटवीन द पेशेंट एंड पेशेंट हिस्ट्री इज़ मैंडेटरी वन टू मैंडेटरी मैनी. ये हमने कार्डिनलिटी शो कर दी. द नेम ऑफ दैट रिलेशनशिप इज़ हैज़ रिकॉर्डेड. सो नेक्स्ट वन एग्जाम्पल. एन एम्प्लॉय कैन बी असाइंड to any number of projects or may not be assigned to any at all, but a project must be assigned to at least one employee, and may be assigned to many. तो बेटा अभी आपसे मैं लास्ट टाइम भी मैंने ये कहा कि सबसे पहले आपने सिनेरियो में एंटिटी टाइप्स को आइडेंटिफाई करना. आफ्टर दैट आप उसकी कार्डिनलिटी को देखें. तो यहाँ पे एंटिटी टाइप्स क्या है? वन इज़ द एम्प्लॉय, अदर इज़ द प्रोजेक्ट. एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट्स के दरमियान रिलेशनशिप है. एम्प्लॉयज़ असाइन किए गए हैं प्रोजेक्ट्स पे, तो हमने टू रेक्टेंगल बॉक्स ड्रा करने हैं. वन इज़ फॉर द एम्प्लॉय एंटिटी टाइप एंड सेकंड वन फॉर द प्रोजेक्ट एंटिटी टाइप. इसके बाद आप इनके दरमियान रिलेशनशिप का नेम देखें कि रिलेशनशिप क्या होगा. असाइंड इज़ द नेम ऑफ द रिलेशनशिप. आफ्टर दैट थर्ड टास्क है, इसकी आपने कार्डिनलिटी चेक करनी है कि आइदर कार्डिनलिटी क्या है, वो अब चेक करने के बाद वो आपने अप्लाई करनी है. तो कार्डिनलिटी हम देखते हैं. एम्प्लॉय कैन बी असाइन टू एनी नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स और मे नॉट बी असाइन टू एनी एट ऑल. यानी एक एम्प्लॉय को नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स असाइन किए जा सकते हैं और नहीं भी किया जा सकता. सो ऑप्शनल के मीनिंग में आ गया. ऑप्शनल मैनी की बात हो रही है. एम्प्लॉय के अगेंस्ट जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ऑप्शनल मैनी है, और प्रोजेक्ट्स के अगेंस्ट एम्प्लॉय की बात करें
एटलीस्ट एक प्रोजेक्ट पे एटलीस्ट वन एम्प्लॉय होगा, एटलीस्ट एक तो होगा। एटलीस्ट वन के मीनिंग क्या हो, मिनिमम वन मैक्सिमम मैनी, एक तो होगा, एक से ज़्यादा भी एक प्रोजेक्ट पे एम्प्लॉय काम कर सकती है, यानी टीम प्रोजेक्ट हो सकता है, जैसे आप अपने रियल लाइफ में एग्जांपल आप देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हम इसकी देखते हैं, यह डायग्राम देखें। एम्प्लॉय एंट्री टाइप, इसको हम रेक्टेंगल बॉक्स में इनक्लोज किया। प्रोजेक्ट इज़ अनदर एंट्री टाइप, इसको भी रेक्टेंगल बॉक्स में हमने इनक्लोज किया। और एम्प्लॉय का प्रोजेक्ट के साथ हमने रिलेशनशिप शो किया, इज़ असाइन टू। अब कार्डिनलिटी मैं लगाने लगा हूँ, एम्प्लॉय से मैं रीड करूँगा, यहाँ पे मैं सिंबल लगाऊंगा प्रोजेक्ट साइड पे। एम्प्लॉय से रीड करूँगा क्या, एन एम्प्लॉय कैन बी असाइन टू एनी नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स और मे नॉट बी असाइन टू एनी एट ऑल। मे नॉट बी असाइन, नहीं असाइन भी किए जा सकते, और नंबर ऑफ प्रोजेक्ट असाइन भी किए जा सकते हैं। यानी एक एम्प्लॉय के अगेंस्ट 0 प्रोजेक्ट हो सकता है, 1 हो सकता है, मैनी प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। और एक प्रोजेक्ट के अगेंस्ट एम्प्लॉय की बात करें, मस्ट बी असाइन टू एट लीस्ट वन एम्प्लॉय। आ प्रोजेक्ट मस्ट बी असाइन टू एट लीस्ट वन एम्प्लॉय एंड मे बी असाइन टू मैनी। एट लीस्ट वन मीन वन एंड मैनी, कम से कम एक एम्प्लॉय तो होगा एक प्रोजेक्ट पे, एटलीस्ट वन एम्प्लॉय तो होगा, एक से ज़्यादा एम्प्लॉय भी पॉसिबल हैं। सो इस साइड मैंडेटरी आ जाएगी सिंबल, और इस साइड पे ऑप्शनल सिंबल आ गया। एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट के दरमियान कार्डिनलिटी क्या हुई, मैंडेटरी मैनी टू ऑप्शनल मैनी। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। अ पर्सन इज़ मैरिड टू एट मोस्ट वन अदर पर्सन और मे नॉट बी मैरिड एट ऑल। यानी पर्सन का पर्सन ही के साथ लिंक शो किया जा रहा है। और रिलेशन एंटिटी टाइप क्या हुई, ओनली वन एंटिटी टाइप इज़ द पर्सन, यानी उस एंटिटी टाइप की एक अक्रेंस अपनी अदर अक्रेंस से मैरिड होगी। सो यूनिटी रिलेशनशिप होगा, जिसे हम रिकर्सिव रिलेशनशिप का नाम भी देते हैं। उस रिलेशनशिप का नाम हमने मैरिड कह दिया। अब इसकी कार्डिनलिटी भी हम देखते हैं। पर्सन इज़ मैरिड टू एट मोस्ट वन अदर पर्सन, एट मोस्ट वन मैक्सिमम वन, या नहीं होगा, अगर मैरिड होगा तो मैक्सिमम वन से मैरिड होगा। और मे नॉट बी मैरिड, या वो मैरिड ही नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंडेटरी सिंबल नहीं आएगा, ऑप्शनल सिंबल आएगा, क्योंकि हमने और मे नॉट बी मैरिड एट ऑल। अगर मैरिड होगा तो एक के साथ, या मैरिड नहीं होगा। इसको हम देखते हैं अपनी एग्जांपल में। ये हमने एक रेक्टेंगल बॉक्स यूज़ किया है पर्सन के लिए। पर्सन इज़ मैरिड टू एट मोस्ट वन अदर पर्सन और मे नॉट बी मैरिड। अगर मैरिड होगा तो वन से मैरिड होगा, और मे नॉट बी मैरिड ऑप्शनल वन, बोथ साइड पे हमने ऑप्शनल वन लगा दिया। अ पर्सन इज़ मैरिड टू एट मोस्ट वन अदर पर्सन, ये हमने शो किया। यहाँ पे इसकी देखें इंस्टेंसेस देखें, यहाँ पे कुछ नेम्स दिए गए हैं पर्सनस के, इनमें से कुछ पर्सन मैरिड हैं। देखें, कैथी इज़ मैरिड टू ओनली वन पर्सन मैक, और इन अदर वर्ड्स मैक इज़ मैरिड विद ओनली वन पर्सन कैथी। लेकिन सब ऐसे पर्सन भी हैं जो मैरिड नहीं हैं, जैसे फ्रेड है, डॉन है, देट आर नॉट मैरिड। ये अक्रेंसेस के साथ आपका कंसेप्ट क्लियर किया जा रहा है। इसी तरह एम्प्लॉई एंड डिपार्टमेंट रिलेशनशिप, ये ऑलरेडी हम एग्जांपल डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे जस्ट ये बताना था कि एम्प्लॉई और डिपार्टमेंट के दरमियान जो रिलेशनशिप्स है वो एक नहीं है, 2 रिलेशनशिप्स हैं। वन रिलेशनशिप इज़ द वर्क्स, अदर इज़ द मैनेज। मी एंट्रीज कैन बी रिलेटेड टू वन एंड अदर इन मोर देन वन वे। वन वे इज़ द वर्क्स, अदर इज़ द मैनेज। तो ये हमारा बाइनरी रिलेशनशिप है, ये वाला भी बाइनरी रिलेशनशिप है। लेकिन जो सुपरवाइज रिलेशनशिप है ये आपका यूनिटी रिलेशनशिप है, इसमें एक ही एंटिटी टाइप एम्प्लॉई इन्वॉल्व हो रही है। ठीक हो गया, तो ये हमारा यूनिटी रिलेशनशिप होगा कि एम्प्लॉय सुपरवाइज्ड 0 और मैनी एम्प्लॉय, एम्प्लॉय इज सुपरवाइज्ड बाय ओनली वन एम्प्लॉय, यानी एक एम्प्लॉय 0 एम्प्लॉय को सुपरवाइज़ करेगा या मैनी को करेगा। लेकिन जो एक एम्प्लॉय होगा वो किसी उसका एक ही सुपरवाइज़र होगा, एक से ज़्यादा उसके सुपरवाइज़र नहीं होंगे, एग्जैक्टली वन सुपरवाइज़र होगा, यानी एक सुपरवाइज़र होगा। सो सुपरवाइज इज़ अ रिलेशनशिप दैट इज़ नोन एज रिकर्सिव रिलेशनशिप, आल्सो नोन एज यूनिटी रिलेशनशिप। बेटा ये आज की हमारी डिस्कशन थी।